Let's pray before we share this short message. एक छोटा सा संदेश होगा उसके पहले प्रार्थना Father, करें। we thank you, Lord, for this beautiful time. पिता हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। We ask today, Lord, you speak to our hearts again. मांगते हैं परमेश्वर कि आज के दिन में फिर से हमारे हृदय से बात कीजिए। We want to see you, Lord, हम आपको देखना चाहते हैं परमेश्वर, because that is ultimate satisfaction to any soul. यही सबसे बड़ी संतुष्टि होगी किसी भी प्राण की। Unless until, Lord, we meet you, Lord, we will never be satisfied. जब तक हम आपसे ना मिले हम तक संतुष्ट नहीं रहेंगे परमेश्वर। Father, we thank you, Lord, you revealed to us हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें दिखाया। on that cross. We see it उस क्रूस पर हम देखते हैं, through the pages of the scriptures, Lord. We find, Lord, the glory of that God. हम इन पे बाइबल के पन्नों में भी परमेश्वर की महिमा को पाते हैं। Speak, Lord. हमसे बात करना परमेश्वर, Anoint us, Lord. हमें अभिषेक कीजिए In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। In 1 John chapter 4, verse 1, it says, पहले यूहन्ना के 4:1 में ये कहता है, it says, do not believe every spirit, हर किसी आत्मा पर विश्वास ना करना, but test the spirit, लेकिन उसको परखो whether they are of God. क्या ये परमेश्वर की ओर से हैं, Because of many false prophets have gone out into the world. क्योंकि बहुत सारे जो झूठे भविष्यवक्ता वो संसार में आ चुके हैं। We are living in such a kind of time और हम इस प्रकार के समय में जी रहे हैं where lie is spreading. जहाँ पर झूठ हर जगह पर फैल रहा है। If you tell one lie 50 times, it becomes the truth. अगर एक ही झूठ को अगर आप 50 बार बोल दो तो सच्चाई मान ली जाती है उसको। I was reading a book. मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, He says that about Adolf Hitler, वो अडल्फ हिटलर के बारे में जो कहता है, who killed, I believe, 12 millions of Jewish people. जिसने लगभग 1,20,000 लोग, कई लोगों को उसने मार डाला। And he propagated this idea that don't bothered about your conscience. और उसने ये एक विचार डाला कि तुम खुद के विवेक के बारे में मत सोचो। Conscience is an invention by Jewish people. ये विवेक जो है वो यहूदियों ने बनाया हुआ शब्द है। There is nothing called conscience. इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको आप विवेक बोलो। So you can do what you want. तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। That's what they propagated. They spread that lie. और उसी झूठ को उन्होंने बहुत फैलाया। We see that today in the world. It's coming in a totally different way. और आज हम संसार में देख सकते हैं कि ये अलग प्रकार से आता है। And at this point of time, but we have the scripture. लेकिन इस समय में जब हमारे पास वचन है, We say that Apostle John says that do not believe every spirit. जैसे पौलुस ने ये कहा कि हर आत्मा पर तुम विश्वास ना करना। We have the news, we have social medias. People go after, follow the crowd. लोग जो है भीड़ के पीछे चलते क्योंकि खबरें आती हैं, सोशल मीडिया से चीजें होती हैं। But we are a spiritual people. लेकिन हम आत्मिक लोग हैं। We take a stand. We believe. We have a conviction in our heart. हम विश्वास रखते हैं और हमारे हृदय में हम कुछ चीजों का ठान लेते हैं। And we make decisions based upon that. और हम उन्हीं निश्चय चीजों पर हम निर्णय लेते हैं। Like a Daniel, like that song which our men sang on Sunday. और वो गीत जैसे हमारे लड़कों ने गीत गाया था रविवार को। Like Daniel, we take a step दानियल of के faith समान हम विश्वास का कदम उठाना रखें। because we know that like this is the reality. क्योंकि हम जानते हैं कि ये सच्चाई है। But because of the lie is spreading fast, क्योंकि ये झूठ बहुत जल्दी फैल रहा but है, we don't believe that हम उस पर विश्वास नहीं because करते। we have a new heart. क्योंकि हमारे पास नया दिल है, We are born again. हमने नया We जन्म have a लिया new है, desire. हमारे पास नई इच्छाएं हैं। Like, and that's what we are like gathering, इसीलिए हम जमा होते हैं right? Wherever possible, in spiritually we meet. और जहाँ कहीं भी हम मिल सकते हैं, आत्मिक रूप से हम मिलते हैं। And this book in the Bible, I was reading Song of Solomon. और ये जो पुस्तक मैं पढ़ रहा था, श्रेष्ठ इसकी जो And पुस्तक है, it's an interesting book. ये बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है। It's a tough book. एक कठिन पुस्तक है But you समझने see के लिए। that the love of Christ towards his people लेकिन आप मसीह के प्रेम को उसके लोगों की ओर देखते हो। is wrought by Solomon. यहाँ सुलेमान ने लिखा है, It is just placed just after the book of Ecclesiastes. यहाँ शबोपदेश के पुस्तक के बाद ही ये पुस्तक लिखी The गई। man is following the wealth, the women, worldliness, wisdom, right? All these और things. मनुष्य जो है वो सारी चीजों के पीछे पड़ा हुआ है, संपत्ति है, स्त्रियां हैं, नाम, सारी चीजों के At the पीछे। end, he says vanity. लेकिन अंत में कहता है व्यर्थ है Life ये। is vanity if I follow all this stuff मैं इन without सारी God. चीजों के पीछे चला, लेकिन अब ये सब कुछ व्यर्थ But है। then come to this chapter और फिर वही अध्याय में आता है where is the love.
जहाँ पर प्रेम के विषय which में is लिखा है, the human soul is craving. जिसके लिए इंसान की जो प्राण है, इंसान का प्राण वो तरसता है, Love. प्रेम। That's what the Song of Solomon talks about. और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक यही बात करती But है। in the world there is lie. लेकिन इस संसार में झूठ है। There is relationships, यहाँ पर रिश्ते हैं, sexual relationship, शारीरिक संबंध है, and will give satisfaction. और उससे एक संतुष्टि मिलेगी, But that's not love. लेकिन वो प्रेम नहीं है। Bible talks continuously. Book of Proverbs specifically talks about the adulterous way is a lie. It's like a hard. और फिर नीति वचन का पुस्तक ये कहता है कि व्यभिचार का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, वो झूठ है। But this story talks was beautiful. लेकिन Song ये of कहानी, Solomon. ये श्रेष्ठ गीत की जो पुस्तक है वो बहुत It's सुंदर a है। pure love. ये एक शुद्ध प्रेम है, Love. प्रेम, Because which is really we are looking. क्योंकि जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो है। Book of Job is talking about the suffering. अय्यूब का जो पुस्तक है वो दर्द के विषय में है, Right, in the Song of Ecclesiastes talks about the vanity, और जो सबोपदेश है वो व्यर्थता के विषय में बात but in करता है। the Song of Solomon talks about the most important thing is called love. और लेकिन श्रेष्ठ गीत की जो पुस्तक है वो प्रेम के विषय में बात करता है, जो सबसे मुख्य विषय And in विचार this है। story, this is a lover and his beloved or her beloved. और इस कहानी में जो होता है वो एक प्रेम है और प्रेमी है। We can see that the picture about Jesus Christ and the individual believer or और फिर Jesus आप- Christ and his church. और आप उसको तस्वीर देख सकते हैं, यीशु मसीह और किसी व्यक्ति से कैसे प्रेम करता है, यीशु मसीह अपनी कलीसिया से कैसे प्रेम करता है। Like his love, its commitment. उसका जो कमिटमेंट जो है, जो उसका प्रतिबद्धता You है, have to know that love cannot be static or stationary. जो प्रेम है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता कभी, It either grow or या it तो is वो go बढ़ता है decline. या तो फिर वो ठंडा होता It है। happens. It वो is होता ही the nature of that. ये उसका स्वभाव ही है। But in the book Song of Solomon, you can see that the love is increasing. लेकिन आप देखते हो कि श्रेष्ठ इसके पुस्तक में ये प्रेम बढ़ता है। It all starts with the person, him. और जो शब्द वह इस व्यक्ति के, इस पुरुष के साथ मानो ये शुरू होता It's है। an interesting book. ये बहुत ही दिलचस्प पुस्तक It's a है poem. और एक तरीके से कविता के समान। And but this God has placed this book in the Bible. That means everything is inspired by God. और परमेश्वर ने इस पुस्तक को यहाँ पर रखा है, मतलब ये प्रेरित है परमेश्वर People से। make fun of it, लोग भले इसका मजाक उड़ाएं, but this is the word of God. लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. स्वर्ग और पृथ्वी चले जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं We टलेगा। see the nature, the love of God very clearly in this book. आप परमेश्वर के प्रेम को बहुत ही खास रूप से देखोगे आप इसमें, Especially in the स्पष्ट रूप last से। chapter, it says that the love is it's strong as death. और अंत के पुस्तक में तो ये कहता है कि प्रेम जो है मृत्यु की से भी बढ़कर है। So as we read this book, जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते and हो, the starting is very interesting. ये इस पुस्तक की शुरुआत बहुत दिलचस्प है। It says about chapter 1 of Song of Solomon, chapter 1, श्रेष्ठ गीत के पुस्तक में पहले अध्याय में verse 4, चौथी पंक्ति में वो कहता है, draw me away, मुझे दूर ले जा we will run after you. और हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। It says that then next sentence says, the king has brought me into the chambers. और फिर वो कहता है कि राजा ने मुझे उसे अपने महल में ले आया है। The king has brought me into his chambers. राजा ने मुझे अपने महल में लाया है। Like it's a personal. ये व्यक्तिगत है। In chapter 2 verse 4, दूसरे अध्याय के चौथी पंक्ति में it says that he has brought me into the banqueting house. वह कहता है मुझे अपने घर के दावत में बुलाया है। But before that banquet, लेकिन उस दावत के पहले he is bringing me to a place called the chambers. वहां उसके एक महल में लेकर आता है। There is an inner chamber, एक हिस्सा जो एक आंतरिक हिस्सा है, alone. एक जगह है जहाँ अकेलापन है। I and him alone. मैं और वो अकेले समय बिताते हैं जहाँ पर। Because this talks about the king is longing for her, this woman. क्योंकि ये राजा है, मानो स्त्री के लिए तरस रहा है। Or the Christ is longing for his people. और मसीह जो है वो अपने लोगों के लिए मानो एक तरीके से प्यासा As है। Hemraj was saying about the fellowship, और जैसे हेमराज कह रहे थे संगति के विषय में, right? Spending time with Lord. परमेश्वर के साथ समय बिताने, He's bringing me into the inner chambers. वहां मुझे अंदरूनी उस जगह पर लेकर I आता है। thank God for his initiations. मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के पहल के लिए। It's not about me starting. ये मैं हमेशा कभी शुरुआत नहीं Like as I करता। said, D.L. Moody said, don't say that I found Jesus. No, Jesus found you. डीएल मूडी ने जैसे कहा, ये मत कभी कहना मैंने मसीह को पाया, क्योंकि मसीह ने तुमको पाया है। Right? Jesus was never lost यीशु मसीह कभी खोया नहीं था for you to find Jesus. कि आप उसे ढूंढते हो। We were lost. हम खोए थे, Jesus found us. यीशु ने हमें ढूंढा। And it is amazing, like initiation of Christ ये मसीह towards our परमेश्वर का life. जो पहल है हमारी ओर बहुत अद्भुत He है। says that he is drawing.
और वो कहता है वो हमें He खींचता is है, bringing into the inner chambers. वहां उसे महल में लेकर आता है। Like that's an important thing in our life. ये हमारे जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण It's हिस्सा है। called, we say, is a grace initiation. हम इसे कहते हैं अनुग्रह का पहल, Grace. अनुग्रह से When पहल। Jacob deceived his brother जब याकूब ने अपने भाई को धोखा and he दिया was running after for his life, और वह अपने जीवन के लिए बचाने के लिए भाग रहा है, yes, he got a blessing from the brother, हाँ उसे a आशीष, blessing from his father. उसके पिता से आशीष मिला, But then he's on the way to Haran over somewhere, और फिर वो हरान की ओर दौड़ता है, right? And he was sleeping on the open ground. और फिर वहाँ एक भूमि पर सो जाता है। But God came. परमेश्वर आया वहाँ, He revealed himself to Jacob. उसने अपने आप को याकूब को दिखाया। Jacob, I am the God of your fathers. या उसने कहा याकूब मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, I am going to bring you back into the same place. मैं तुझे वापस इस जगह पर लेकर आऊंगा। But Jacob is not even searching for him. लेकिन याकूब तो ढूंढ भी नहीं रहा है Jacob is परमेश्वर not को, even calling for him. वो तो उसको बुला भी नहीं रहा I love है। that kind of initiations God takes. मुझे पसंद है ऐसे प्रकार के पहल जो परमेश्वर When करता है। Cain's offering was rejected, जब केन का जो बलिदान था वो ठुकराया गया, God is going after Cain. परमेश्वर केन के पास ही आता है Cain, I want to talk to you. और कहता है केन मुझे तुझसे बात करनी Like you है, are filled with your own self. तू अपने आप से ही भरा हुआ You है, think you are doing good, तुझे ऐसा लगता है तू ठीक कर रहा है, but all your sacrifice is filled with your own self. लेकिन तेरा पूरा बलिदान तेरे से ही भरा I हुआ है। wanted to like help you. मैं तुझसे मदद करना But चाहता हूँ। why God is going to Cain? क्यों परमेश्वर केन के पास जा रहा Because है? that's the nature of God. क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव ही है। Grace initiation. अनुग्रह से वो पहल करता है। Why God has kept us here and we are going out and to sharing the faith. परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा है और हम बाहर जाकर विश्वास को बांटते हैं। Grace initiations. अनुग्रह से पहल, Because that's what like happening in this story. इस कहानी में यही हो रहा Like I है। was thinking about what is grace. मैं सोच रहा था अनुग्रह के बारे में कि अनुग्रह Because क्या है, many times we misunderstood God's heart. क्योंकि परमेश्वर का हृदय हम बहुत बार गलत तरीके से We समझते think हैं। God is like us. हमें ऐसा लगता है परमेश्वर मेरे जैसा है, But when you read the scripture, we see that it's totally different. लेकिन जब आप वचनों को पढ़ते हो आप पाते हो वो बहुत अलग है। He gives grace like to the most like a unlikely person or nation. वहाँ अनुग्रह देता है उन लोगों को जो सबसे ज्यादा उसके लायक नहीं है मानो। We read about the book of Jonah. आप योना के पुस्तक के बारे में पढ़िए। Right, of course, God is used that the stubborn prophet to हाँ, convert परमेश्वर the ने- whole nation. परमेश्वर ने इस प्रकार के भविष्यवक्ता को इस्तेमाल किया कि पूरे देश का परिवर्तन करे। Right, the whole wicked nation was got converted. पूरा का पूरा दुष्ट देश ही बदल गया। And I think it's amazing about God gives the freedom to the creatures, his human being. लेकिन मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर हमें एक आजादी देता है हमें एक इंसान होने के And नाते। wherever there nation there is a freedom, that nation is always going to be prosper. और जहाँ कहीं भी जो देश होगा जहाँ आजादी है वो हमेशा सफलता रहेगा। The moment you cut down the freedoms, what happens? जिस समय आप आजादी को छोड़ दोगे आप क्या होता है? You're going to try to control their property, their opinions, their material things. आप उनके विचारों को, उनके संपत्तियों को, उनके चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते You हो। are going to cut down their own like a creativity and their like a productivity toward the nation. आप उनके ही सोच को, उनके ही क्रिएटिविटी को रोक दोगे एक तरीके से। God has given that freedom. परमेश्वर ने हमें वो आजादी दी है। You can't tell a tree only grow upward. The tree will grow this side also. अब आप नहीं बोल सकते वृक्ष को तो सीधा ही बढ़ना, वो इधर भी बढ़ेगा उधर भी बढ़ेगा। Like there's a freedom. There is a growth. There is a freedom. उसमें एक आजादी है, वो अपने हिसाब से बढ़ेगा। Grace initiations. अनुग्रह के पहल, Grace is not it doesn't mean that God is giving man what he deserves. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मनुष्य को वो देता है जिसके वो योग्य है। Grace is not a matter of giving what man deserve. अनुग्रह इसका मुद्दा नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य को वो देता है जिसके वो I लायक did है। so much, मैंने कितना किया so I deserve grace. इसलिए मुझे अनुग्रह मिलना चाहिए। Wrong. पूरा गलत है ये, That's wrong. पूरा गलत है। You read Matthew chapter 20, that story about the people who are working in the vineyard for different hours. आप मत्ती का 20वां अध्याय पढ़िए, उन लोगों के बारे में जो बगीचे में काम करते हैं, अलग अलग घंटे में आते हैं Person वो। said, I worked the whole day, I deserve more. पहले वाले ने कहा मैंने पूरा दिन मेहनत किया, मुझे पूरा मिलना चाहिए। The person who worked 1 hour, but he got the same लेकिन reward. एक व्यक्ति जो Or same. एक ही घंटा काम किया उसको भी वही इनाम मिला। Romans chapter 4 verse 4 it says, रोमियो का 4:4 ये कहता है, where Apostle Paul says a very clear definition, what is grace. जहाँ पर पौलुस जो है अनुग्रह की परिभाषा देता है स्पष्ट रूप से। Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. लेकिन जिसके भी कोई काम करता है वो वेतन के लिए वहाँ एक तरीके से उसे वेतन कहा जाता You है, work in a company or you, उसकी कमाई कही जाती है। and after that 31st of that month, you get the money.
आप एक किसी भी कंपनी में काम करते हो, 31 दिन काम करते हो, उसके बाद ही आपको आपकी पगार मिलती है जो वेतन है। You don't say to the company, आप कंपनी को ये so नहीं बोलते हो gracious, thank you so कि तू बहुत अनुग्रहकारी है कि You तूने deserve पगार that. दिया। You आप deserve उसके that. योग्य हो, आपको मिलना चाहिए था, आपने work, मेहनत you किया, spend your energy in that. आपने अपनी ऊर्जा लगाई, आपने मेहनत किया, आपको पगार But मिला grace आपका। is not like that. अनुग्रह लेकिन वैसा नहीं है, Grace is not a wages, वो वेतन जैसा नहीं है, but it's totally different. ले बहुत अलग है। Ephesians 2:8 says that by grace we are गलातियों का 2 Saved. इफिसियों का 2 कहता है कि हम अनुग्रह से ही बचाए गए हैं, we are saved by grace. हम अनुग्रह से बचाए गए। But Romans 3:24 says, it's a great रोमियो का verse. 3:24 बहुत ही अद्भुत पंक्ति है। I think the Bible college MTC students can learn this verse. बाइबल कॉलेज में एमटी से सीख सकते हैं। Romans 3:24. रोमियो का 3:24 Being justified freely, धर्मी his घोषित grace. किया गया उसके अनुग्रह से, we are मुफ्त में। declared righteous हम धर्मी घोषित कर दिए गए हैं उसके अनुग्रह से, without any reason बिना किसी कारण के, by His grace. उसके अनुग्रह से। That's what He says, that we ये are वचन में ही justified कहता है। freely. हम धर्मी घोषित कर दिए गए मुफ्त में, Freely, the word freely meaning without any cost. बिना किसी कीमत हमने He चुकाए didn't बिना। do something to attract that the आपने declaration to come. आपने उस घोषणा को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं की। The Bible says that God has shut up all men under disobedience. Romans 11:32. रोमियो का 11:32 जैसे कहता है कि सारे व्यक्ति जो है वो एक तरीके से अनाज्ञाकारी We है। are all under sin. हम सब के सब पाप में हैं। In the height we may be different, various heights. हाँ, जैसे अब हम अपने ऊंचाई में अलग अलग जगह पर होंगे, When you look from the high, like on the top, like everybody is same. लेकिन जब आप ऊंचाई से देखते हो किसी की हाइट नहीं दिखती, सब एक ही समान We are दिखते हैं। all under sin. हम सब के सब पाप में भरे We हुए were all under sin, पाप के भीतर मानो, right? And the authority of sin. पाप के अधिकार में भी के Right. भीतर। But in Romans 3:23 says that we all fallen short. लेकिन हम रोमियो का 3:23 पढ़ते हैं कि हम सारे परमेश्वर की महिमा से Nobody रहित was seeking God. Isaiah कोई 64. हैं। यशायाह का 64वें अध्याय में कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। So grace is not a matter of giving what I deserve. तो अनुग्रह इसका मुद्दा नहीं है कि मुझे वो मिलता है जिसके मैं लायक हूँ। That's what the Pharisees thought. फरीसियों को भी यही लगा एक Hey, तरीके we से, did so many हमने good इतना prayers, सारे long अच्छी prayers. प्रार्थनाएं की, लंबी प्रार्थनाएं की, I deserve more. तो मुझे और मिलना चाहिए। But grace is not that. लेकिन अनुग्रह वो नहीं है। Or grace is not a matter of supplying what I lacking. और या फिर अनुग्रह वो नहीं है कि मैं उस चीजों को देता हूँ जिसमें पसंद है। I have a 50,000 rupees. मेरे पास 50,000 I है, need 60,000. मुझे 60,000 चाहिए। Then Craig or Boyram say that I am going to give you 10,000 rupees. तो बोयराम आके कहता है कि मैं मुझे 10,000 दूंगा आपको, So he is supplying what I am lacking. और जिस किसी की चीज की कमी है मुझे वो मुझे देता है। Grace is not like that. अनुग्रह वो भी नहीं है। I do 90%, 10% God will supply. No, 90% मैं करता हूँ, 10% गॉड दे देगा, नहीं, it's not that way. ये भी अनुग्रह नहीं है। Because God hates man's boasting. क्योंकि परमेश्वर नफरत करता है मनुष्य के घमंड की बातों God से। hates that. मनुष्य की जो घमंड की That's बात what है उससे Ephesians परमेश्वर 2 नफरत verse करता है। 9 says. इफिसियों का 2:9 ये कहता है Lest any flesh should glory. कि कहीं कोई शरीर अपने आप में महिमा ना करे, Right? Nobody should glory in their flesh. उनके देह में कोई अपने आप को ऊंचा ना He उठाए। says that like it's not like that. God, I'm trying my best to keep the law. भाई ऐसा नहीं कि परमेश्वर मैं सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं व्यवस्था का पालन कर सकूं, But wherever I fail, please compensate that. You लेकिन do it. जहां भी मैं गलती करता हूँ वहां संभाल लेना आप। No, no, no. नहीं नहीं Like नहीं, we are all like that's a wrong concept of grace. ये अनुग्रह का गलत सोच है, Right? Grace is not that. पर अनुग्रह ये नहीं है। Or another way, grace is not withholding what I don't deserve. या फिर अनुग्रह वो नहीं है कि जो जिसके मैं लायक हूँ उसे रोक दिया गया I है, am so much unworthy. मैं बहुत अयोग्य हूँ, So that means only less grace for you. इसलिए मुझे कम ही अनुग्रह You मिलेगा। are you're worthy, so you will attract more grace. तुम अच्छे हो तो तुम्हें और ज्यादा अनुग्रह No, मिलेगा। Bible says that God gives grace to the humble. लेकिन परमेश्वर कहता है कि अनुग्रह वो नम्र को देता है। The water flow from the mountain, from the height to the bottom, to the valley. जो झरना है वो मानो वो ऊंचाई से लेकर वो नीचे गिरता है। If you put the cup like what is called inverted position, you cannot have anything inside. अगर आप उसके कप को उल्टा रखते हो तो आप कुछ भी अंदर नहीं पाओगे। Grace brings to that place to acknowledge that Lord, I am a sinful man. और अनुग्रह आपको उस जगह पर लेकर आता है जहां पर आप मानते हो कि आप पापी हो। We are like that. हम वैसे हैं। God, grace, that's what man doesn't like grace. इसीलिए परमेश्वर मनुष्य अनुग्रह को पसंद नहीं It करता, makes equal with everybody. क्योंकि वह आपको सबके समान बना देता है। Even the worst,
murderer or adulterer, and grace makes God's grace brought to that place. और फिर we are all equal in one क्योंकि sense. परमेश्वर का अनुग्रह मानो सबसे बड़े खूनी या व्यभिचारी को भी एक ही स्तर पर लेकर आता है बाकियों के साथ में। Think about it, three plates, जो तीन जैसे प्लेट्स हैं जो टूटे हुए हैं। right? One plate is broken to three pieces, another one 5 pieces, another one 10 pieces. शायद 3 प्लेट टूटे हुए, एक के 3 है, एक के 5 है, एक के 10 टुकड़े हैं शायद। Whatever it is, चाहे कितने भी टुकड़े हो, everything is useless. किसी का कोई काम नहीं You है, can't say that I only three pieces, three places. No? क्योंकि वहां पर सिर्फ 3 चीजें हैं, Everything is broken. सब कुछ टूटा हुआ है। Grace brought to that place. परमेश्वर अनुग्रह ने हमें उस जगह पर लाया। He says that in वो ये this कहता है इस अध्याय में, grace initiation. अनुग्रह की पहल He कर। brought me to his inner chamber. उसने मुझे अपने महल में लेकर आया। Do I deserve that? क्या मैं इसके योग्य हूँ? It's a privilege. ये सौभाग्य की बात It is a privilege. है। ये सच में सौभाग्य It's है। like going to England to watch to see that Buckingham Palace. ये मानो ऐसा है कि आप इंग्लैंड में जाते हो बकिंघम पैलेस को देखने के लिए। You are just watching there, looking, and the queen is coming and waving at you. मानो आप वहां पर देखने जा रहे हो और रानी आके आपको हाथ दिखाती है। You are coming from India, right? Come. भारत से अरे आ जाओ। You took vaccine, right? Come inside. वैक्सीन लिया तो आ जाओ। Come on, what a privilege. आप सोचोगे क्या सौभाग्य है मेरा The फिर। queen is calling you and come and have रानी आपको बुलाते इंग्लैंड की और आपके साथ बैठना चाहती है to have some tea, English tea, ताकि उनकी कुछ चाय पी सको। right? Think about this verse. सोचे इस वचन के बारे में। The king is calling me to his inner chambers. राजा मुझे अपने महल में लेकर आता है। What a privilege. क्या सौभाग्य है। I think sometimes we study about the grace of God. और ऐसे ही हम परमेश्वर के वचन के बारे में, अनुग्रह के बारे में We अध्ययन करना need more चाहिए। grace. हमें और अनुग्रह की जरूरत है। Right? Our church name is Greater Grace. हमारे कलीसिया का ही नाम ग्रेटर ग्रेस है। What is meaning? We need इसका more मतलब grace. है कि हमें और अनुग्रह अधिक We चाहिए, need to अधिक study अनुग्रह about चाहिए। God's grace. अनुग्रह के और अध्ययन करना है। And in this story, you see this thing happens और to आप this इस कहानी में इस चीज को होते हुए देखोगे, to this woman. इस स्त्री के साथ। Like where the king is calling her, राजा उनको बुलाता है and the same things the king is calling us to the inner chamber. और आज भी परमेश्वर हमें अपने महल में बुला रहा And the है। three things happens. और 3 चीजें जो Or होती three है, discoveries she find. और वो 3 चीजें जो पाती है वो, The first discovery she is she is seeing, like she see this thing. और जो पहली खोज वो करती है उस जगह It's पर, about that this is a king, वो कहती है राजा है, glorious king. महिमा से भरा राजा। Of course, in the story is a Solomon, हाँ, ये सुलेमान की कहानी है। wisest man, इस व्यक्ति की धरती का सबसे Wealthiest बुद्धिमान man. व्यक्ति, सबसे संपत्ति से भरा हुआ। all kinds of. You can see that he is आप the सारी चीजें देखते हो उसके पास है, in the Guinness Book record. He has all. उसके पास सब कुछ है, मानो गिनीज बुक में But उसके in रिकॉर्ड में है। this story, say that she find the king. लेकिन इस कहानी में वो कहते हैं कि उसने राजा को पाया। Like that's an important element. Isn't ये it? बहुत ही अद्भुत एक चीज है। Even in our even like as we were saying that about spending time with the Lord. और जैसे हेमराज वो कह रहे थे परमेश्वर के साथ समय बिताने के विषय में, Like we start with Him. हम उससे शुरू करते It's हैं। not starting with a grocery list of like right? Like a ये ऐसा list. नहीं कि मानो आप राशन की चीजें लेकर उसके सामने लिस्ट लेके बैठे हुए We हो। start with Him, हम उससे शुरू करते हैं, with God. परमेश्वर से शुरू That's करते why we हैं। worship God. इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना Or करते हैं। open the scriptures and look at the pages of the scriptures to see. Or- Like I need something to hold on to it. और मुझे वचनों से कुछ खोल कर चाहिए जिसकी मैं पकड़ बना के रख सकता हूँ, Right? Where I want to listen to God. कि मैं कहाँ पर सुनना चाहता हूँ परमेश्वर We से। need to hear God. हमें सुनने की जरूरत है उससे। Right? And this is important. ये महत्वपूर्ण है। Right? Sometimes the couple says that he talks too much or she talks too much. कभी कभी जैसे पति पत्नी कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा बोलता है या बोलती है। Just be silent. Listen. Just listen to her. शांत रहो, चुप रहो, सुनो, Listen. Right? बस सुनो। I think that's what like she is seeing in this inner chamber. और इस महल के इस अंदरूनी जगह पर यही हो रहा है। She saw the beauty of this king. इस राजा की सुंदरता को उसने देखा महल The में। king. राजा, Right? Like Jesus, like in the last Sunday in Exodus chapter 33. पिछले रविवार को निर्गमन के 23वें अध्याय में Talked about that Moses was hidden in the cleft of the rock where he saw the glory of God. मूसा परमेश्वर के उस पथरीले जगह के में छुपा हुआ था जहाँ से उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। Kept in that clefts of the rock. उस पत्थर चट्टान के पीछे मानो उसे रख Not दिया only गया that, था। God has covered him with his hand. परमेश्वर ने उसे अपने हाथ से ही नहीं ढका है, Moses saw the back part of God. उसने परमेश्वर का पिछला हिस्सा देखा That मानो। means maybe the afterglow of his glory. शायद उसके महिमा का एक हिस्सा देख लिया We उसने। don't know.
But his Moses' countenance was totally changed when he came out of that, जब मूसा उससे बाहर आया उसका चेहरा पूरा बदल चुका था, and his face was shining. उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था, मानो He has to शाइन हो रहा था, he has to put a veil over his face. एक पर्दा जैसे मानो उसे डालना But पड़ा that उसके glory मुंह पर। was fading away. लेकिन वो महिमा मानो कम होती जा रही थी। Like maybe the people ask, "Hey Moses, why are you putting this veil? Your glory शायद is शायद gone. लोग उससे पूछ रहे हैं कि तू ये अभी तक कपड़ा क्यों डाले रखा है, क्योंकि महिमा जा चुकी है, It's gone." वो जा चुकी है। But 2 Corinthians chapter 3 says that. लेकिन दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय कहता है, But we are changing from glory to glory लेकिन हम महिमा से महिमा की ओर बदलते जाते हैं, because this is different. क्योंकि ये अलग है, Because we seen the glory of God on the cross क्योंकि specifically. हमने क्रूस पर उसके महिमा को खास तर But देखा है। before the cross, we see the glory of Christ as his perfect life. और हमने उसके पहले परमेश्वर की महिमा को, यीशु की महिमा को देखा एक सिद्ध जीवन के रूप में। But we also see the glory when we read the book of Revelation, the glory of his present और Christ. प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ते हैं तब उसमें भी हम मसीह की महिमा को पाते हैं। Another thing she found herself in this, in this दूसरी inner खोज chamber. उसने पाई कि He says in verse 5, वह 5वीं पंक्ति में कहता है, I am dark. मैं एक तरीके से डार्क हूँ, I am dark but lovely. लेकिन मैं सुंदर हूँ। O daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon, do not look upon me because I am dark. और वहां पर एक कहता है कि समुद्र को तो मैं काली तो हूँ पर सुंदर हूँ, केदार के तंबू और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। Verse 6. मुझे इसलिए न घूर कि मैं सावली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई हूँ, And because the sun has tanned me. और क्योंकि उस धूप से मुझे She found झुलस her गई है। own unworthiness. उसने स्वयं की एक अयोग्यता को पाया, Maybe in a hidden darkness. शायद उसके अंदर कोई छुपी हुई सांवलीपन था। When the light comes, what happens? और जब सूरज की रोशनी आती तो It क्या होता है, exposes. वहां दिखा देता है, It exposes. वहां दिखाता रहता है पूरा। Right? Otherwise, like we can live in darkness and pointing fingers or to others. या तो फिर हम इसलिए, नहीं तो हम अंधकार में रहकर एक दूसरे की ओर ही उंगली से इशारा करते I रहेंगे। think this happens. और ये होता है, Right? When Isaiah chapter 6, when Isaiah saw the glory of risen God. जब यशायाह के 6वें अध्याय में यशायाह ने परमेश्वर की महिमा देखी, But actually Isaiah saw Christ. एक तरीके से यशायाह ने मसीह को देख लिया था। In John chapter 12, it says that Isaiah saw the glory of Christ. योना के 12वें अध्याय में वो कहता है कि यशायाह ने मसीह की महिमा को देखा। What was that first thing he heard? पहला Glory. चीज क्या उसने सुना? महिमा, Holy. पवित्र Holy. पवित्र पवित्र, Holiness. पवित्रता के बारे में, Holiness. पवित्रता। He saw that. उसने But उसे then he देखा। said, और फिर उसने कहा, what he said? I am an undone man. मैं अभागा undone. मनुष्य हूँ, मैं अभागा Like मनुष्य I'm हूँ, a man of unclean lips. मैं अशुद्ध जीव वाला व्यक्ति He हूँ। found himself उसने स्वयं को उस स्थान पर पाया because of that glorious light. उस महिमा की वजह से। What an amazing that is the inner chamber. कितना अद्भुत वो आंतरिक It's हिस्सा not है। condemning me, ये मुझे दंड नहीं देता but है, it is giving it humbling me. लेकिन मुझे नम्र बनाता है। Right? I think that's an amazing thing. Nothing humbles a Christian like in this intimate fellowship. मुझे सच में अच्छा लगता है कि कोई भी विश्वासी को इससे ज्यादा चीज कोई नम्र He बनाएगी knows जब वह all. उसके साथ He गहरा knows रिश्ता बनाएगा। all about me. वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, Still loves me. फिर भी मुझसे प्यार करता He है। knows all about me. वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, Still gives me abundance of His grace. फिर भी मुझे बहुतायत का अनुग्रह This देता है। happens at that inner chamber, ये होता है उस आंतरिक महल in में, that secret उस communion. गुप्त स्थान में जहाँ पर हमारी संगति होती It's है। not like a religious, like a way of yesterday we were talking in the class. और ये कोई धार्मिक तरीका नहीं है, जैसे हम कल के क्लास में बोल रहे थे। Right, in the class we were saying about the sacrifice people used to bring to the forgiveness for their sins. और जैसे हम कल के क्लास में कह रहे थे कि लोग अपने पापों की क्षमा के लिए बहुत सारे बलिदान लेके I आते थे। did a sin, okay, bring a sacrifice. और तुमने कुछ किया, जैसे पाप बलिदान को लेके आओ, Bring in another sacrifice. और एक बलिदान को लाओ, फिर कुछ किया। But God is not delighted in that. परमेश्वर से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। That's what the psalmist says that. Psalm भजन संहिता 51. लिखने वाला यही कहता है। Verse 16, Psalm 51 says that God, you did not delight in burnt offering or भजन in संहिता 51 sacrifice. का 16 कहता है कि तुझे होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। If it was, I would have been brought to you. अगर तू अन्न बलि होम बलि से खुश होता तो Who मैं is तुझे वो saying this? लेकर आ गया होता। David, कौन कह रहा है ये? दाऊद। when he is saying that, कब वो कह रहा है? after he committed a sin, Psalm उसने 51 is that, उसने पाप करने के बाद, like he committed adultery, he committed murder, and then he confessed after a long time by confrontation of Nathan. और फिर
जो भजन से 51 है, उसने पाप करने के बाद, मर्डर करने के बाद उसने लिखा जब नातान ने उसे ये कह दिया था। But very easy for David. Okay, bring thousands of sacrifice. दाऊद के लिए बड़ा आसान होता, हजारों बलिदान लेकर आ जाओ, But he says that that's not the meaning. लेकिन वो कहता है इससे आप प्रसन्न नहीं होते हो। What is the purpose in bringing that sacrifice? ये सारे चीजों को लाने का क्या फायदा, Is my heart in it? क्या मेरा दिल है उस He's बलिदान just में? trying to fall upon the mercy of God. वह बस परमेश्वर की महिमा पर गिरने की कोशिश कर रहा Because है। and this is amazing thing. Like when you are in the presence of God, we find this unworthiness. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हो तो आप इस अयोग्यता को I महसूस still करोगे। remember in the Pauline epistles, Pastor Carl was teaching this phrase, like amazing. और पास्टर काल इस हिस्से को सिखा रहे थे पॉलिन In एपिसल्स के First क्लास में। Corinthians, Paul says that I am the least. 1 Corinthians chapter 15, I am least of all the saints. और पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में भी कहता है कि मैं सारे जो पवित्र लोग हैं उन सब का सबसे निचले स्थान पर हूँ। I'm sorry. Ephesians 3, I believe, Ephesians 3 says that I am least of all the saints. इफिसियों का 3 अध्याय में कहता है कि मैं पवित्र लोगों में सबसे कम Then स्थान पर after हूँ। many years later, he's writing a letter to the Corinthians. और फिर 1 Corinthians और पहले कुरिन्थियों में वहाँ लिखता है बहुत सालों के बाद chapter 15. 15वें अध्याय में He says that I am the least of all the apostles. वह सारे प्रेरितों में सबसे नीचे स्थान पर हूँ मानो। Then at the end of his life, अपने जीवन के अंत में फिर वो कहता है, 2 Timothy, he says that I am दूसरे the तिमुथियुस least में of all कहता है कि sinners. मैं I am सारे- the chief of the sinners. मैं सारे पापियों में सबसे ऊंचे स्थान पर So हूँ you मानो। see the progression, आप देखते हो उसके प्रगति, right? Least of all saints, सारे पवित्र लोगों में सबसे नीचे स्थान पर, least of all the apostles. सारे प्रेरितों में सबसे नीचे स्थान पर। But at the end of his life, he's saying, अपने I'm a जीवन में वे कहता है chief अंत of में, sinners. मैं पापियों में सबसे सरदार हूँ Pastor मानो। Carl was saying this, like as you walk with the Lord, और पैसे काल कह रहे थे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते रहते हो, you find the grace of God more and more clearly. आप परमेश्वर के अनुग्रह को और ज्यादा स्पष्टता से Or पाने also you लगोगे, see that such an unworthiness in our own life to receive और this. उतना ही आप ये भी जानोगे कि आप कितने अयोग्य हो कि आप उस अनुग्रह को पा That's रहे what हो। happened to this woman. इस स्त्री के साथ भी वही हुआ। She isn't that king is bringing her to the राजा chamber, राजा उनको महल में लेकर आता है, but she find the glorious king. वहां महिमा से भरे हुए राजा को पाती है, But in that glory, she also find her dark side, like in that unworthiness. और उस महिमा के बीच में वहां स्वयं के कालेपन को या सांवलेपन को भी पाती But है। also she finds something in और this. फिर वो तीसरी चीज को भी पाती है, Verse 6. छठवीं He पंक्ति। says that the last phrase is that read, they made me the keeper of the vineyards, but my own vineyard I have not kept. उसने कहा कि उसने मुझे दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, लेकिन मैंने स्वयं की जो दाख की बारी थी उसकी रखवाली Very नहीं की। active. I am intense active. मैं बहुत Intensely कार्य active. कर रही, बहुत ही क्रियाशील हूँ, But I neglected what Emmanuel was saying, that I neglected my personal fellowship. लेकिन Communion. मैंने उसी चीज को नकार दिया जैसे हिमराज कह रहा था, मेरे स्वयं के समय को परमेश्वर के साथ, Personal communion. मेरा व्यक्तिगत संगति। I doing so many things. मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, I am trying to, like Jesus said, trying to remove that, what you call the motes from the brother's eyes. और वे मानो एक तरीके से आप अपने भाई के आंख से वो छोटा सा टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तिनका, But I am unmindful about the beam which is in my eyes. लेकिन मेरे खुद के आंख में इतना बड़ा लट्ठा है वो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। What we are is, for God, what we हम are भूल is गए more हैं कि- important than what कि- we do. कि हम जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम क्या करते हैं उससे, Right? What we are हम जो is more करते हैं, important. हम जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम जो करते हैं। She neglected her vineyard उसने दाखवारी को मानो नकार because दिया, her brothers put her in a different duty. क्योंकि उनके भाइयों ने उनसे उसे संभालने के लिए रख दिया But कहीं। thank God she is in this inner chamber. लेकिन धन्यवाद होगा कि परमेश्वर का कि वह इस महल में है अभी। Chapter 1 verse 15 says, पहले अध्याय के 15वीं पंक्ति कहता है, it says that this, behold, you are fair, my love. You are fair. You have dove's eyes. तू सुंदरी है, तू मेरी प्रिय है, तू सुंदर है। This is what the king is saying to her. और यहाँ पे राजा जो वर है वो ये कह रहा है उससे, You have fair, तू सुंदर है, right? You have fair. You have a dove's eyes. तेरी आंखें कबूतर के समान है। This is what God says to us. यही परमेश्वर हमसे कहता है। We are in the inner chamber. हम महल में हैं, Every mirror has two sides, हर आईने के दो तरफे होते हैं। right? One is a rough side, एक होता है जो थोड़ा खर्चीला हिस्सा रहता है, रफ साइड, but you don't put before your face. आप उसके चेहरा देखे नहीं देखते हो। You say, what happens? होता क्या है? Am I blind? जब मानो लगा अंधा हो क्या, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ कुछ, Change the side.
मिरर को बदल दो Now आईने you को। can see your reflection. अब आईने के सही ओर से आप अपने प्रदर्शन This को is देख exactly सकते हो। Jesus saying. यही यीशु कह रहा है। Jesus, I am not looking at that side. यीशु कहता है मैं उस हिस्से को नहीं देखूंगा, I have given grace. मैंने अनुग्रह दिया है, I see my own reflection on your face. मैं अपने ही चेहरे को तुम्हारे चेहरे पे देखता हूँ। Right? That's amazing. ये बहुत You are अद्भुत है। fair. तुम सुंदर हो। Like in this chapter also says that you have no spot. और इस वचन इस अध्याय में भी यही कहता है कि तेरे पास कोई दाग धब्बा नहीं है, You have no spot. कोई गलती This नहीं, is कोई what दाग happening, धब्बा नहीं है। right यही now. होता है इस समय में। We are being sanctified हम पवित्र किए जा रहे by हैं the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ से Also by the work of the word of God. और परमेश्वर के वचन से भी Right? We are sanctified. हम पवित्र किए गए हैं। And this is going to happen till Christ comes. और ये होता रहेगा जब तक मसीह आता है, Where he is going to come and take us to his place. और वहाँ आएगा और हमें अपने स्थान पर So लेकर he is जाएगा। saying that you have a dove's eyes. और वो कहते हैं कि तेरे पास कबूतर के समान आंखें We हैं have an eagle's eyes, are very powerful. और तुम्हारे पास वो उकाब के समान आंखें हैं। वो No, बहुत he didn't say that. नहीं, उसने ये नहीं कहा। Right? Eagle's eyes are very powerful. You can look directly to the sun. उसने ये नहीं कहा उकाब की आंखें हैं जो कि सूरज की वो डायरेक्टली देख सकती है But you have बहुत, a dove's eyes. लेकिन उसने कहा तेरे पास कबूतर की आंखें हैं, Because that क्योंकि dove speaks about the Holy Spirit. वहाँ पवित्र आत्मा के विषय में कहता है। Right? When David could not build the temple, जब दाऊद राजा जो महल नहीं बना he सका, wanted to build the temple, but he बनाना could not. चाहता था लेकिन वो नहीं बना सका। Why? What was the reason? क्यों? God gave. You are a man of war. तू युद्ध करने वाला Right? व्यक्ति You है, will not build. तू राज्य महल ने तुम shed वो lot नहीं of बनाएगा, blood. तूने बहुत खून बहाया। I think that's another thing is that we cannot do the work of God with argument, और हम वही एक चीज है कि हम परमेश्वर और के debate. कार्य को लड़ाई बहस से कार्य नहीं कर by सकते, debating, and we cannot. वार्तालाप करके हम उसके राज्य को It's नहीं by बना the सकते। power of the Spirit, ये सिर्फ आत्मा के सामर्थ से ही हो through सकता the है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा के We सामर्थ are से, building the church. कि हम कलीसिया को बना But रहे हैं। before building the church, लेकिन what कलीसिया has को happened? बनाने से पहले क्या होता है? Come to the inner chamber. उस महल में आओ We see this discovery. और आप इन चीजों को खोजोगे। Glorious. महिमा, Right? In the Old Testament, the priest has to go to the temple. और पुराने नियम में महायाजक को मंदिर में जाना पड़ता था, Yesterday, draw that and go to that first, cross the first curtain and then goes to the second curtain. पहले उसको पहले कर्टन में जाना पड़ता था, फिर दूसरे में, फिर बलिदान। And then in that darkest room, उस सबसे अंधेरे कमरे में there's no light, जिसमें कोई रोशनी नहीं है, but there is the presence of God, glory परमेश्वर of की God. उपस्थिति और उसकी महिमा वहां पर है। He's standing there with the blood. वहां पर खून लेके खड़ा है वो। Every year they have to do it. हर वर्ष उनको ऐसा करना है। But when Jesus came, जब यीशु आया, one sacrifice, एक बलिदान once for all, हमेशा के लिए, forever we are. हमेशा के लिए हम पवित्र किए गए। That's an amazing thing. ये बहुत अद्भुत बात है। God gives grace. परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है And that's what we sing, grace, grace, all throughout eternity. और हम अनुग्रह देखते आ रहे हैं पूरे अनंत से। Right? That's what like Christ, Revelation chapter 5, he has freshly slain wound. और प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, उसके पास वो ताजे निशान है मानो उस चोट के, Like freshly slain, like a fresh मानो wound. उसको बस अभी वध किया गया और Why? उसकी चोट बहुत ताजे हैं। क्यों? To remind us तो हमें याद दिलाने के लिए of his great sacrifice. उसके अद्भुत महान बलिदान To के remind विषय us. में। हमें याद दिलाने के लिए We are there not because of our achievement, हमारे खुद के चीजों की वजह से हम वहाँ नहीं है, but purely by his grace, लेकिन सिर्फ उसके अनुग्रह से, purely by his bringing us to that place. तो सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने हमें उससे स्थान पर लाया है। Amen. आमीन। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you पिता, हम धन्यवाद देते हैं for your grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। None of us deserve. कोई भी हमारे बीच में योग्य नहीं था, That's why in the book of Revelation, इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में you have given a new song to our आपने एक नए mouths. गीत दिया है हमारे होठों को। Oh God, we are waiting. हम परमेश्वर हम उसे लेते हैं, We're waiting for that glorious appearance. हम इंतजार करते हैं उस महिमा से भरे हुए When we प्रकाशन read the book of Revelation, we are so much things which talks about heaven. को। और हम जब उस पुस्तक को पढ़ते हैं, पूरा स्वर्ग के विषय में कहता है, But till then, लेकिन तब तक we are singing हम गीत गाते हैं here in this world इस संसार में, इस पृथ्वी में, to proclaiming your love. आपके प्रेम को जाहिर करते हुए। Thank you so much, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। As John Newton says about like amazing grace. जैसे जॉन न्यूटन ने कहा, अद्भुत अनुग्रह। We are wretched, we are miserable people. हम अभागे मनुष्य हैं, But thank you, Lord, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर for that grace which you have उस shown. अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिखाया है।
Thank you, Lord, you're bringing us to that inner chambers. धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें महल में ले चलते In हो। this world, everything talks about the self. इस संसार में सब कुछ बस स्वयं के विषय में कहता है, You have to show yourself. अपने आप को दिखाना पड़ेगा। But you are bringing us to the inner chamber. लेकिन आप हमें उस अंदरूनी जगह पर लाते हो, अनिल महल में। It all starts with you. सब कुछ आपसे शुरू हुआ And it's also in the inner chamber. It's about a revelation about who you are. और उस महल में भी आप ही दिखते हो हमें, आपका ही प्रकाशन मिलता है हमें। But also there is a bringing us to the humble, Lord, humility. और वही हमें नम्रता की ओर लेकर आता है। But also, Lord, in our faces, your face shines. और हमारे चेहरे में ही आपका चेहरा मानो We प्रकाशित thank you, होता है। Lord, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, for giving us one more day. हमें एक और दिन देने के लिए। This point of anyone listening, अगर यहाँ पर कोई है इस समय में never received Jesus as your life, आपने personal Savior. यीशु मसीह को कभी भी अपने जीवन में स्वीकारा नहीं है व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के Say रूप में, this simple prayer. आप एक आसान सी प्रार्थना कर सकते हो। Jesus, यीशु, I believe in you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ, I need you. मुझे आपकी ज़रूरत है। If you do this prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है, you can contact us. आप हमसे बात कर सकते हो, You can write a mail to us. आप हमें मेल कर सकते हो। The Bible says that you are a child of God. बाइबल ये कहता है कि आप परमेश्वर के संतान हो, Your sins are forgiven. आपके पाप माफ कर दिए गए हैं। Amen. आमीन। God bless. Amen. Amen.